Today, Hariom Smiles Chennai आया है, and we have come here to heal everybody. Smile means see magic in life every second. And so tomorrow we have a session in Chinmaya Heritage Center from 3 to 5, wherein we are going to transform people's life as Hariom Smiles has been traveling around India, around the globe, healing everybody. So we just want to ignite a soulful revolution, because we don't just want to heal physically, we want people to heal emotionally, mentally, and spiritually. So Smile is no organization, it is not also a mission, it is a wave, a movement to bring a transformation in today's world. In today's world, all the youth are living a life, say about a rat race. They're just running without having the right direction. So we just want to give them a pause for peace, a pause for purpose, and transform their life from stress to strength. We want them to live a life where there is no chaos, but there is clarity of life. We want to save them from breakdowns, and we want to give them breakthroughs. So Smile elevates the soul power, and we all are focused on a good lifestyle. So everybody is investing on beautiful lifestyle, but we want to focus more on great life. Beautiful lifestyle means lots of things, lots of materialistic things for which people are running and want life to be very successful. But Smiles कहता है ना कोई मन से अपंग हो, ना कोई तन से अपंग हो. And if we see, आज पूरे वर्ल्ड में मन की अपंगता मीन्स स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है. जितनी ग्रोथ हो रही है हमारी, उससे तेजी से ग्रोथ हो रही है मेडिसिन्स की, डिजीजेस की. एंड वी हैव अ मैसेज फॉर द सोसाइटी दैट देयर इज नो डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, इट इज ऑलवेज डिसईज. अगर आपका माइंड सेटल्ड नहीं है, अगर आपका माइंड पीसफुल नहीं है, सो आप बॉडी में डिसईज पैदा करते हैं, बिकॉज इनसाइड यू आर नॉट एट रेस्ट. So people are trying to look for happiness outside, and we are awakening people, letting them know that your happiness and peace is always inside. So we have to move from inside to outside. So this is Journey of Smiles, where we have healed lakhs of people from ailments which they were living with those ailments since 10 years, 25 years, so very old ailments, and they have come to Smiles और एकदम मैजिकली वो हील हो जाते हैं. एंड यू नेम एनी एलिमेंट, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इट इज मेंटल, वेदर इट इज फाइनेंशियल, सो देर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन. सो you know, everybody is nowadays showing smile, but that curve on the face comes when there is Insta or when there are cameras around, when they are taking selfies. But smile वो जो curve है वो अंदर सोल को देता है. So it gives that curve inside the roots of a human being, and when the soul smiles, the world automatically heals. तो हम एक जने की गारंटी नहीं लेते हैं, दो जने की नहीं, हम पूरे वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. दैट इज वाई आवर स्लोगन इज सर्वे भवन्तु सुखिनः, एंड वी आर वर्किंग फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड टू एलिवेट द सोल जर्नी. सो सब लोग समझते हैं कि ये कैसे होगा, तो हम बताते हैं कुछ भी नहीं, हम साइंस और स्पिरिचुअलिटी की आपस में मैरिज कराना चाहते हैं, अ वेडिंग कनेक्शन विद अ हायर कॉन्शियसनेस. सो हम अनलिमिटेड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं थ्रू दिस लिमिटेड बॉडी, whereas when we come to Smiles, we learn that we are unlimited beings, we have immense power within, but now we have become dependent upon gadgets. तो हमें लगता है कि जितने गैजेट्स लाइफ में आएंगे, जितनी प्रॉपर्टीज आएंगी, जितना ब्रांडेड स्टफ आएगा, हम हैप्पी हो जाएंगे. बट वी हैव सीन इट अराउंड पीपल दैट ग्रेट लाइफ मीन्स कंटेंटमेंट. व्हेन यू आर हैप्पी इन ऑल स्टेट ऑफ लाइफ, तो वी गारंटी कि आपको ग्रोथ भी मिलेगी,
बट अभी लोग प्रोग्रेस और ग्रोथ का मतलब नहीं समझ रहे. लोग समझ रहे हैं प्रोग्रेस हो रही है, दैट इज सक्सेस. बट हम बता रहे हैं सक्सेस मीन्स वेदर थिंग्स अराउंड यू आर अकॉर्डिंग टू यू और नॉट. आपको कहीं सक्सेस मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिर भी आपके फेस पे वो कर्व रहे, वो स्माइल रहे, आपके अंदर भी वो स्माइल रहे. दैट काइंड ऑफ लाइफ वी वांट टू गिव. दिस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर एंशिएंट विजडम. हमारा जितने भी ऋषि मुनीस थे, उन्होंने जो हजारों साल पहले फाइंड किया कि इस बॉडी में बेस्ट ऑफ द हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, विच स्टेट में, तो उन्होंने फाइंड किया कि जब हम दान करते हैं, जब हम किसी को हेल्प करते हैं अनकंडीशनली, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस के हार्मोन सिक्रीट करती है. नाउ बिकॉज सोसाइटी में लाइफ ऐसी हो गई है कि एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट आईफोन, आईपैड. सो आई पे इतना ध्यान हो गया कि इलनेस बढ़ती जा रही है और हम सब उस चीज के विटनेस है. जितनी कंफर्ट, जितना फ्रीडम, जितनी एजुकेशन आज के यूथ के पास है, आज की सोसाइटी के पास है, उतना अर्थ पे पहले कभी भी नहीं हुई. बट उससे भी स्पीड से बढ़ रही हैं बीमारियां, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन. सो वी आर ऑन दिस जर्नी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पीसेस टू पीस, from chaos to clarity, from I means illness, we want to bring everybody to we means wellness. So wellness, so I request everybody to attend tomorrow's session, which is cure is sure. The only condition is that your mind should be pure. So people are working on lifestyle, whereas we want to work on their mindset. If their mind is सेटल्ड एट द राइट प्लेस, मीन्स हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी समझाते हैं, हम लिम्फिक ब्रेन भी पढ़ाते हैं, हम रूट ब्रेन भी पढ़ाते हैं. फिर हम ये भी बताते हैं कि कैसे मंत्रास का कनेक्शन है इन सबको सिंक्रोनाइज करने में. इफ वी आर चैंटिंग द राइट मंत्रा, तो हमारे ब्रेन पैटर्न बीटा वेव से कब अल्फा पे और अल्फा से थीटा पे आ जाता है, विच इज लाइक वेरी फास्ट वर्किंग. अभी हमारे जितनी भी मेडिटेशंस हैं, हमारे जो टूल्स हैं स्माइल्स में, उनके ऊपर न्यूरो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं एंड दे हैव फाउंड वेरी गुड रिजल्ट्स. सो हम लोग हवन कराते हैं एंड दिस हवन, इससे हम 20 किलोमीटर्स ऑफ एरिया को बिल्कुल प्योर ऑक्सीजन से भर देते हैं. उस एरिया में जहाँ पे ट्रीज भी ब्रीथ कर रही हैं, सारे ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बीइंग के अलावा भी ब्रीथ कर रहे हैं. एंड वी हैव शोन द रिजल्ट्स दैट देखते ही देखते एलिमेंट्स ठीक हो जाती हैं. सो हरिओम स्माइल्स इज अ वेव, जैसे मैंने पहले भी बोला, इट इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी फील कि अगर हम ह्यूमन बॉडी में आए हैं तो हम सबका लेने की तरफ ध्यान है. हरिओम स्माइल्स देना सिखाता है. सो डायरेक्ट बेगरी से देवता की पोजीशन पे बिठा देता है. And you will meet so many people who are members of Hariom Smiles, will share their lives कि लाइफ में एकदम सब कुछ चेंज हो गया. चेंज हो गया का मतलब ये नहीं है कि आसपास अब कोई चैलेंजेस नहीं रहे, बट नाउ दे नो हाउ टू हैंडल देयर चैलेंजेस with lots of peace, lots of smile, and they are always in a state of calmness. तो ये जीने का तरीका है, ये कोई एक रिलीजन नहीं है, इसमें कुछ और नहीं है ऐसा फॉलो करना, बस you have to be in a state of gratitude. So gratitude is one of our tools. There are lots of tools like pink energy, salt therapy, solar plexus, Shambhavi sadhana. तो हम अलग अलग कैंप्स लगाते हैं जहाँ पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से महर्षि इफेक्ट पैदा करते हैं. महर्षि इफेक्ट वो इफेक्ट है जिससे कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. सो जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस अपने आप एटमॉस्फेयर में से ही चला जाता है, एंड पीपल सडनली फील दैट दे हैव अ मोर स्टेबल लाइफ एंड दे हैव मोर कंपैशन फॉर पीपल अराउंड देम. तो ये सारे बहुत सारे चेंजेस हैं. स्माइल सेज दैट ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें बताता है. हमारे जितने भी ओल्ड कस्टम्स और ट्रेडिशंस थे, लाइक पुटिंग अ बिंदी,
like wearing bangles, like wearing bichya या पायल या जितने भी हमारे festivals हैं, they were all scientifically based, जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी एक बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर को अपने अंदर ही क्रिएट करती थी, जिसकी वजह से डिजीजेस नहीं आते थे. ग्रेजुअली वी स्टार्टेड फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर सो मच कि हमने इन सबको सुपरस्टिशन मानकर धीरे 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 छोड़ दिया. हम यूथ को वापस कनेक्ट करना चाह रहे हैं उनके कल्चर के साथ, बिकॉज ऑल दिस इज कनेक्टेड टू हायर कॉन्शियसनेस. सो इट्स नॉट सुपरस्टिशन, इट इज सुपर कॉन्शियसनेस. क्योंकि हम देख ही रहे हैं सोसाइटी में बहुत डिग्रीज आ गई हैं, बहुत पैसा आ गया, बहुत फ्रीडम आ गया है, बट उतना ही बंधन हो गया है अपने ही विचारों का, अपने ही डर का, अपने ही स्ट्रेस का. सो हम चाहते हैं कि हम इससे आज़ाद कराएं, हमारे यूथ को स्पेशली आज़ाद कराएं who are getting attracted towards western culture. और हम वहाँ देख ही रहे हैं, I've been to so many countries और वहाँ पे रेशो ये निकल के आया है कि anxiety, depression has become a part of them. Loneliness is a part of their life. तो हम अपने भारत को उससे बचाना चाहते हैं. हमारा भारत ऋषि मुनियों का देश है और विश्व गुरु बनने की कला रखता है, क्योंकि हजारों लाखों साल पहले जो हमारे ऋषि मुनीज ने सर्च किया उस पे आज भी रिसर्च हो रही है, तो भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है जितना उन्होंने फाइंड कर लिया था. फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेंशन पतंजलि जी, तो उन्होंने माइंड, बॉडी और सोल का कनेक्शन वे बैक बता दिया था. अब न्यूरोसाइंटिस्ट भी वही बोल रहे हैं, फिजिक्स भी वही बोल रही है. दे आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स, जो हमारे ऋषि मुनीज ने बहुत साल पहले खोज लिया था. तो हम मेडिटेशन के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से सबको बताना चाहते हैं कि हमारी बॉडी एक हीलिंग गैजेट है अपने आप में. अगर किसी भी और एनिमल को जो जंगल में रह रहे हैं, जो पहाड़ों पे रह रहे हैं, जो वाटर में रह रहे हैं, अगर उन्हें डिजीजेस नहीं हो रहे, देन व्हाई विद ह्यूमन बीइंग्स? वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, वी हैव ऑल द एजुकेशन, वी हैव सच गुड हाउसेस, स्टिल वी आर सफरिंग इन सो मेनी वेज. उस सफरिंग से हमें एक जीवन का सफर बहुत सुंदर बनाना है, जहाँ बड़े घर में रहें, जहाँ बच्चे उनकी सेवा करें, जहाँ स्वयं के लिए टाइम हो. वी डोंट हैव टाइम फॉर आवरसेल्व्स. Now we don't want to paint the face with smile. We want to paint the soul with a smile. And that soul journey should be known to everybody, to all the people, all age group. इसमें ये भी नहीं है कि बड़े छोटे, सब age group इससे transformation feel कर रहे हैं. So this is what Hari Om Smiles is doing.